Good evening and welcome to all of you for this our third session of the South Indian Art and Architectural Heritage. मैं यहाँ पर आप सभी का स्वागत करता हूँ और आज का हमारा तीसरा सत्र जो है उसकी हम शुरुआत करते हैं. Okay, Khushi Singh also visited. So it means that few scholars are visited the Mahabalipuram. So just give me 1 minute. We will start it. Okay, so as per our syllabus, this is our unit second, introduction to sculpture. So sculpture, for the pronunciation, many times मेरी तरफ से जो गलती हो जाती है, I pronounce it as a sculpture, okay. So sculpture. So इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा कि अगर मेरी तरफ से गलती हो भी जाए तो समझ लीजिएगा, ओके. सो यहाँ पर आज जो है हम महाबलीपुरम के शिल्प जो है तो उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं. इट्स नॉट अबाउट द आर्किटेक्चर, ओके. इट्स नॉट अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री, but till then just see this chronology of Pallava dynasty from 275 to 901. So early Pallavas, middle Pallavas and the latter Pallavas, and most of the temples which we can see now there, so they are from this latter Pallava period, from Mahendravarman first to last one, okay. So here this is the Pallavas territory, the dynasty, and you can see here the southern part of India, Tamil Nadu part particularly. So they ruled over here, and then the group of monuments at Mahabalipuram occupy an important place amongst the classical monuments of India. Most of the complex was built in the 7th century CE. So during the region of Narasimhavarman first of Pallava dynasty, that was prevalent in South India from the 3rd and 4th till the 9th century. Situated close to the sea, the today afternoon someone sent me the message regarding what's the meaning of monolithic. एक ही पत्थर में से अगर कुछ निर्माण किया है तो उसे मोनोलिथिक ऐसा हम कहते हैं. एक ही पाषाण, सॉरी नॉट द पत्थर, एक ही पाषाण जो है रॉक, उसमें से अगर कार्विंग करके अगर बनाया गया है, सो इट्स कॉल्ड एज द मोनोलिथिक. एंड केव टेम्पल्स उसमें भी दो अलग अलग बातें हैं. एक तो जो केव, जो पहाड़ के अंदर ही जो गुफा बनाते हैं, वो एक कॉल्ड केव टेम्पल. दूसरा है केव यानी रॉक जो है उसको इतना इस तरह से काट दिया गया है कि मंदिर बनाने से पहले उसका जितना आवश्यक पोर्शन है उतना रख के बाकी सारा हिस्सा अगर निकाल दिया है, सो इट्स कॉल्ड एज द सेपरेट श्राइन. देन उसके बाद जो है अगर हम स्ट्रक्चरल यानी पत्थर अगर ला करके मंदिर अगर बनाएंगे, पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखते हुए अगर मंदिर बनाएंगे, स्टोन्स आर द ब्रिक्स वट एवर बी देयर, सो वो स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर है. ये बात हमको याद रखना है. दिस थ्री डिफरेंट आर देयर. So cave temples offer an incomparable experience of the ancient Indian architecture and sculpture. So Mahabalipuram received World Heritage Site status in 1984 and attracts visitors from across the country and the world. The ancient tradition of stone carving is still alive in the region. This is an interesting thing because such type of the traditions now at very few places, like as the Mount Abu or in the Puri or in Karnataka, in Gadag, in Lakundi, and then in one more place, I forget, yeah, Shilpal, this is the, in Goa, in Shilpaloka studio like that. So very few places are there, this tradition continued. So and rhythmic sounds of the hammer and chisel on stone afford a glimpse of how these monuments, rock-cut caves and sculptures came into being almost 1300 years ago. So just a humble request to all the participants and the scholars over here. जो भी यहाँ पर सभी विद्यार्थी और सभी स्कॉलर्स है, जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया का अध्ययन करने की शुरुआत करते हैं तो उस समय हम नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स के बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं. जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, या फिर हमारे यहाँ महाराष्ट्र के उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में तेर का त्रिविक्रमेश्वर मंदिर है. तो
या और भी कई सारे मध्य प्रदेश और यहाँ के मंदिरों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। बट एट द सेम टाइम वी नीड टू स्टडी दिस साउथर्न पार्ट आल्सो, क्योंकि यहाँ पर भी हमें ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जो अर्ली फेज जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल की शुरुआत के सारे आज भी हमारे पास प्रूफ है, ऐसे कुछ प्लेसेस हम देखते हैं। So the monuments at Mahabalipuram can be grouped according to their mode of construction. Monoliths, freestanding temples cut out of solid rock, most of which are locally styled rathas or chariots. Monoliths से an example would be the complex of 5 monoliths, also known as Pancharathas, caves excavated in hills. का ये सिर्फ dividation हम देख रहे हैं. Temples, the term being used to denote built-up masonry temples. Okay. The Shore temple is an example of this. And then sculptured scenes carved on the hill edges. They illustrate at the styles of Pallava architecture and classic art, and the majority belong to the period of Narasimhavarman. So this ICOMOS, which recommends this inclusion in this criterion. Second, the influence of these sculptures of the Mahabalipuram characterized by the softness and suppleness of their modeling spread affair. Now we can see here one of the finest example of this Mahabalipuram sculptures, the open air panel of this Ganga Avatarana. Ganga Avataran शिल्प जो है वहां से हम शुरुआत करेंगे, is an example of the skill of the Pallava artist cutting stone directly. The representation of the final word shows the artist this consummate skill in depicting the habits and the minds of animal very realistically. The sculptures of animals reach its apex. The deer, the elephant, the monkey, the bull, and the cat at Mahabalipuram are skillfully chiseled out, an example of outstanding mastery in monolithic rock. आप ये जो वर्ड्स यहाँ पर दिए हैं, जिनका बारे में वर्णन किए हैं, उस शब्दों को याद रखिए. डियर्स, एलिफेंट्स, मंकी जो भी है, और इसके फोटोग्राफ जब आप देखेंगे तब आप इसके बारे में वर्णन आप खुद करना है. So the concept of unity is obviously expressed in the relief sculptures of Mahabalipuram in two ways. Firstly, the unconscious stone emerges as the conscious form of animals, men and gods who are engaged in various activities. Secondly, sculptures like the Ganga Avatarana of Mahabalipuram narrate allegorically the unity of the three words. So this open art gallery, it's called as the open art gallery at Mamallapuram temple. Sculptural beauty of this period contains some wonderful sculptures, figures of like speaking monkey, elephants of huge size, figure of this ascetic cat standing erect. You can see here this Ganga Avatarana Shilpa. Some of the scholars mentioned this as the Arjuna's penance. अर्जुन की कठोर तपश्चर्या जो है उसका शिल्प, ऐसा कुछ स्कॉलर्स ने वर्णन किए हैं. बट सब कुछ अगर ठीक से देखा जाए, सारे शिल्प अगर आप ठीक से देखेंगे तब आप ये समझ पाएंगे कि ये गंगा अवतरण शिल्प है, और गंगा अवतरण की स्टोरी जो है, कहानी है, तो आपको वो भी पता रहना है जब जाकर के आप इसको समझ सकेंगे. ओके, so this is the entire portion of this Shilpa. This called as one of the largest rock reliefs in Asia. So ये portion भी जो है, ये पीछे का कुछ पार्ट कट हो चुका है और आगे का सिर्फ हम देख रहे हैं. Here, this monument is about 25 meters in length. Only this Shilpa, okay? So in length from the south to north and 20 meter in height. So see what is the big size is here. Carved on the side of a huge rock, this huge Mahabalipuram relief is considered a visual counterpart of the celebratory lineage recent Prashasti that began various inscriptions left by the Pallavas at other sites. जो भी विजय हमने प्राप्त किए वो ईश्वर के आशीर्वाद से हमने प्राप्त किए, और उसके यानी हम उसका कुछ जो भी है हम्बली कुछ हम उसको गिफ्ट करें, कुछ हम ईश्वर को अर्पण करें, इस भाव से ये निर्माण किया है, ऐसा स्कॉलर्स का मानना है. So it's not uncommon for successful dynasties to depict themselves as gods. अगर देखा जाए तो ऐसे कई सारे आप उदाहरण देख सकते हैं. मिडिवल में सिर्फ एक एग्जांपल मैं यहाँ पर कह पाऊंगा कि अगर आप फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा जो सम्राट अकबर ने बनाया था, वो क्यों बनाया था
तो खानदेश पर जब विजय प्राप्त की थी, गुजरात विजय वगैरह जो प्राप्त की थी, उसके बाद उसने वो बनाया था. सो इट मीन्स दैट such type of the incidents happened in Indian history, and not only in Indian history, but many Egyptian kings had also tried to create a similar narration during the height of their region. So of all the richly embellished the cave temples, freestanding monoliths and open-air carvings during the quarter century following Mamalla's great triumph of 642, none is more outwardly charged with commemorative content than the Great Penance relief. अभी यहाँ पर आप देखते हैं कि फिनांस के बारे में ये किए हैं, बट ओके, मैंने डिबेट नहीं करना है. एक बात याद रखिए, स्कॉलर्स का अलग अलग जो ओपिनियन है आप उसको लिखिए, मगर आप अगर मैंने जैसे कहा कि उसके बारे में जो स्टोरीज है, हमारे जो पुराणों में एपिक्स में जो स्टोरीज दिए हुए हैं उसको ठीक से पढ़ेंगे तब आप इसको समझ पाएंगे. ओके, सो दिस इज द हाफ पोर्शन, लेफ्ट हाफ पोर्शन. ओके, so this is the middle portion and the right side portion. तो अभी यहाँ पर सिर्फ ये पोर्शन देख के इस तरफ में भी अगर आप गौर से देखेंगे तो हमें कई सारी बातें यहाँ पर दिखाई देगी. सो यहाँ अगर आप में से कोई ट्राई अगर करना चाहे तो कर सकता है. एनीवन बता सकेगा कि क्या दिखाई देता है दिस लेफ्ट साइड पोर्शन? एनीवन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ and try to say. क्या मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir, you are audible. Okay, okay. So can anyone of you say about few words? कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर? जो दिख रहा है वो बताइए. सर यहाँ पे मैंने इसके बारे में पहले पढ़ रखा है जी. और यहाँ पे क्या है कि गंगा का अवतरण दोनों साइड से गंगा बहती हुई बताई गई है. मैंने कल ये बताया है, जो मुझे आंखों को दिखाई दे रहा है उतना ही अभी मुझे लिखना है. ओके, क्योंकि धीरे 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 हम सारा कंप्लीट करेंगे, उस समय फिर वो वर्णन आएगा. मगर यहाँ आपको सिर्फ जो आंखों को दिखाई दे रहा है वो बोलना है. स्टोरी जो है हमको पता नहीं है. अगर मैं कहीं ऐसी जगह पर चला जाऊं कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, तो पहले तो मैं ये कोशिश करूंगा जो मुझे दिख रहा है वो मुझे लिखना है. सो स्टार्ट फ्रॉम दैट. और पहले हमेशा स्टूडेंट्स को मौका देना है. सॉरी फॉर टू से दैट, मगर स्टूडेंट्स पहले कोशिश करें. अगर कोई स्टूडेंट नहीं कर रहा है देन यू आर मोस्ट वेलकम. कोई स्टूडेंट प्रयास करना चाहेगा? एनी स्टूडेंट? जैसे वॉर की तरह, मतलब कोई तैयारी हो रही है, शंख कुछ सेकंड फिगर जो नीचे से सेकंड फिगर है वो कुछ उसके मुंह में कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको फूंक रहा है, वो जैसे तैयारी है कि ये कुछ वाक्य में जाएगा. हाँ जी, हाँ कुछ बजा रहा है वो. और पीछे शेर भी एक इन मोशन में है, जैसे वो भी भागने के लिए खड़ा है. हाँ जी, हाँ जी, कुछ बड़ा होने वाला है जैसे. जी. ओके, एनीवन एल्स? और कोई जो भी बता रहा है, बताने से पहले आपका नाम और इंस्टीट्यूशन का नाम बताइए और फिर शुरू करें. मैं मनीषा एम. आई एम एन आर्टिस्ट. आई डू स्कल्पचर्स इन सेरामिक. ओके. आई एम फ्रॉम दिल्ली. यस. ओके, प्लीज से अगर कुछ बताना है और कुछ बता सकते हैं तो जरूर बताएं. और कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ ऐसे लग रहा है देव लोग से भी ऊपर की तरफ जो इमेजेस हैं वो भी कुछ देवता लोग भी हैं, जैसे ऊपर से. सर गंधर्व की मूर्तियां लग रही हैं. गंधर्व की मूर्तियां लग रही है. ओके ओके, सो ठीक है. ओके, अभी थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे. सो ये जो जानकारी कहीं पर ज्यादा नहीं आती है, इसके बारे में थोड़ा गौर कीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लेके रखिए. A mid-century artist named मांधातर. आप इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है आपके हिसाब से. मांधातर. ओके, so has been credited with the creation of this amazing masterpiece. So Mandata flourished during the region of Mahamalla, this Narasimha. Mahamalla, it's pronounced sometimes Mahamalla Narasimha. He headed the Pallava atelier when victory monuments like the Great Penance relief were being executed. The most defining part of the sculpture is, in my opinion, is the descent of the Gangas. So
right in the middle of the wall, dividing it vertically into two halves. One can see a narrow fissure. It is believed to be depicting the holy Ganga river, which originates from the Himalayas. The rock-cut channels and footing immediately above this rock suggest that there was a machinery water system to store water. So the design is such that water could flow from that fissure and stay collected in the tank below. It was also meant to depict the flow of time till at the base it reaches the Pallava kings. It can be safely said that Pallavas took the descent of Ganga as an important event and included it in the precious epigraph. So the relief panel at Mamallapuram therefore depicts this important event. The presence of the three Nagas in the central service is of utmost importance, as one of them is supposed to be Nagini, the mother of Pallava. This part of the wall art focuses on Shiva, suggesting his key role in the episode depicted here. He is shown holding a Trishula trident, Parshu, and a snake in his three hands. His fourth hand is in Varada Mudra, suggesting granting. Varada Mudra means the Ashirvad de rahe hai. Okay, so suggesting granting a boon to the ascetic nearby. 5 pairs of Ganas are found, 3 of the left and 2 on the right. They are shown seated wearing a peculiar cap. A standing Gana with a tiger or lion carved on its belly is part of Shiva's this retinue. Now you can see here, this is over here, because अब अगर आपको ये कहानी अगर पता है, अगर आपने ये एपिक स्टोरी अगर पढ़ी है, तो भगीरथा, भगीरथ तपस्या कर रहा है. क्यों तपस्या कर रहा था? क्योंकि अपने पुरखों को, अपने दादा परदादा जो भी पुरखों को, उनको मोक्ष प्राप्ति देनी थी, इसलिए स्वर्ग से गंगा को बुलाना था. और ये तपस्या हजारों साल तक उसने की. ये उसका शरीर जर्जर अवस्था में जो आप देखते हैं, यानी पूरी हड्डियां आपको दिखाई दे रही है. सिर्फ ये जो हड्डी का जो एक सापड़ा कहते हैं हमारे यहाँ पे, तो ये कंकाल सिर्फ जो है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है. जैसे बुद्ध की तपस्या के इसमें भी कई बार दिखाया जाता है. और ये एक पैर पर खड़ा है और ये गंगा के लिए तपस्या कर रहा है. शिव उसके सामने यहाँ पर खड़े हैं और गंगा का जो अवतरण होने का है, तो उसके लिए यहाँ पर दोनों के बीच में, यानी जैसे मानो यहाँ से गंगा का अवतरण होने वाला है, ये यहाँ पर दिखाया गया है. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गंगा हिमालय से आ रही है. ओके, सो हिमालय से आने से तो वहां पर जो शांति, पशु जो है वो शांत स्थिति में है. वो ऊपर का है, जब हम पोर्शन देखेंगे तब समझ में आएगा. और शिव सामने खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे पशु, जैसे हिरण है या फिर यहाँ पर जो अलग अलग और भी पशु जो दिखाए हैं, और कई सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं. तो ये सब उसकी तरफ देख रहे हैं, यानी अभी गंगा आने वाली है. और यहाँ पर जो है आप नाग देवता का ये देख सकते हैं. तो ये चित्र, ये फोटोग्राफ जब आप देखते हैं, यहाँ पर भी देखिए 3 snakes you can see here, एंड यहाँ पर एक छोटा सा टेम्पल है. स्कॉलर्स मेंशन्ड इट एज अ विष्णु टेम्पल. अब ऊपर शिव खड़े हैं और यहाँ पर विष्णु मंदिर है. स्तूपी पार्ट इज एट हियर, और गर्भगृह में जो है विष्णु की मूर्ति दिखाई देती है, और किंग जो है उसके सामने बैठा हुआ है, ऐसा वर्णन किया है. तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि गंगा के अवतरण के समय में लोग उसको जो है यहाँ पर विनम्रता से उसका ये कर रहे हैं. और यहाँ पर भी जो है घड़ा लेकर के, कांधे पर घड़ा लेकर के खड़ा है. यहाँ पर जो है एक कपी बैठे हुए हैं, आप वानर कह सकते हैं. और फिर यहाँ पर देखते हैं कि हिरण है और शिकारी यानी जो जंगली जानवर है वो सभी यहाँ पर खड़े हैं. यहाँ पर भी कुछ सोए हुए हैं. सो ऐसे अलग अलग जानवर है, मनुष्य है, देवता है, नाग देवता है, यानी ये सभी जो है गंगा के अवतरण के लिए अभी सभी लोग जो है दे आर ईगरफुली वेटिंग. अभी वो आ रही है तो उसके लिए वो सब लोग तैयार है. जैसे इसके बारे में कुछ ये जो सर कटे हुए हैं, कुछ ओपिनियंस अलग अलग स्कॉलर ने लिखे हुए हैं. बाकी कुछ भी नहीं टूटा, मगर सिर्फ ये क्यों टूटा है उसके बारे में अलग अलग ओपिनियन दिए हैं. कि जैसे ये शिव के भक्त थे, बाद में जो लोग आए उन्होंने तोड़ा वगैरह,
बाकी किंग्स ने तोड़ दिया वगैरह, ऐसे अलग अलग उसके ये मिलते हैं। बट जैसे मैंने कहा जब भी आप पेपर कभी लिखेंगे या फिर अगर एग्जाम में अगर लिख रहे हैं तो कृपया करके जो भी डिबेट्स है उसको जो है बाजू में रख दीजिए। अब यहाँ पर जो है आप पूरा शिल्प यानी नीचे से ऊपर तक का हिस्सा पूरा पोर्शन जब आप देखते हैं लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, सो गंगा अवतरण की ये जो कथा है, एपिक स्टोरी जो है, सो हियर यू कैन सी द थ्री स्ट्रीम्स ऑफ गंगा एज थ्री केसेस। ये तीन इसका ये यहाँ ये दिख रहा है। सो केतुस का गॉड्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स ऑब्जर्विंग दिस इवेंट। तो सब लोग यहाँ पर बड़े बड़े हाथी और ये सभी लोग जो है वो अभी यहाँ खड़े हैं। तो यहाँ पर अभी आप देखते हैं इन हाथियों के शिल्प, और उसको क्लोजअप से अगर देखेंगे तो हाथी का ये जो दांत दिखाई दे रहे हैं, तो इसके नीचे एक कैट खड़ा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी बताई गई है। ये मैंने दोनों क्लोजअप व्यू दिखाया है। जिनको ऑडियो ऑन है कृपया वो बंद रखिए। मुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है, कृपया अपना ऑडियो बंद रखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कैट जो है, इसके बारे में भी एक स्टोरी बताई गई है। ये कैट जो है तपश्चर्या के पोजीशन में खड़ा है जैसे, मगर उसके ऊपर भरोसा करके सारे पशु पक्षी जो है इसके आजू बाजू में जमा हो जाते हैं। स्पेशली यहाँ पर नीचे देखते हैं चूहे भी इसके बारे में। क्षमा करना, 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा ये करता हूँ। मैंने सभी का साउंड जो है वो बंद कर दिया है। जब सवाल पूछने होंगे तब उस समय में हम इसको ऑन करेंगे। ओके, सो यहाँ पर इसके ऊपर, बिल्ली के ऊपर भरोसा रख के जो है, कैट के ऊपर भरोसा रख के चूहे सारे यहाँ बाजू में जमा हो गए हैं। बाद में पता चलता है कि वो तो सिर्फ नाटक कर रहा है, और ये जो चूहे जमा हो जाते हैं बाद में उसको खाना ही है। तो ये स्टोरी यहाँ पर बताई गई है। सो ऐसी अलग अलग कहानियां, अलग अलग स्टोरीज इसके साथ जुड़ी हुई है। बट शिल्प में हमें जो दिखाई देता है स्पष्ट रूप से, वो आप लिख सकते हैं। ये कैट जो है वो तपश्चर्या के रूप में, तपश्चर्या के पोज में यहाँ पर खड़ा है। आप यहाँ देख सकते हैं हाथी का ये जो सूंड है और दांत उसके बिल्कुल सामने वो यहाँ पर खड़ा है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाथी का जो शिल्प है, इट्स सो फाइन कार्विंग। और इसके नीचे जो है आप यहाँ पर ये पैर और सूंड जो है उसके बीच में और एक हाथी का शिल्प है, और यहाँ पर 2 हाथी और यहाँ ऊपर और एक हाथी का शिल्प है। सो दिस 3 एंड दिस इज द 4, और यहाँ पर एक हाथी है और ये पीछे और यहाँ दिखाई देते हैं और यहाँ एक दिखाई देता है। So around 6 are there. So we find a variety of animals on this panel. The carvings at the bottom right are some of the finest elephant sculptures in India. The larger elephant exhibits a bifurcated tusk. It points towards an attribute of Airavata, the mount of Indra, who was a pure white elephant depicted with 4 tusks. The group contains 2 adults and 6 child elephants. So 10 deer and antelopes, mountain goats, 4 monkeys, a hare, anguna, or 1 boar, a tortoise are among the other animals on this panel. यहाँ आप जितना बारीकी से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, उतने ज्यादा आपको ये सारे दिखाई देंगे। यहाँ ऊपर आप ठीक से देखिए ये शिल्प, और जहां जहां आप देख सकते हैं, काउंट आप खुद कीजिए, जैसे हमने अजंता पेंटिंग्स में किए थे, नंबर किए थे 1 2 3 4। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले और इसके ऊपर नंबरिंग कर सकते हैं और आप मुझे भेज सकते हैं। ओके, सो यहाँ जो नंबरिंग करेंगे उसके सामने सिर्फ लिखिए कि कितना कौन से एनिमल्स है या कौन सी देवताएं आपको जो दिखता है उसके बारे में आप वहां पर लिखिए। अभी आप यहाँ पर ये क्लोज व्यू देख सकते हैं। सो जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर 2 पैरों के बीच में 3 हाथी बालक दिखाई देते हैं और यहाँ पर एक चौथा दिखाई देता है, और यहाँ फिर से वो कैट दिखाई देता है। ऊपर जो है वो कपी वानर देवता जो है वो दिखाई देते हैं। अभी सिर्फ कपी बोलूंगा तो शायद किसी को गुस्सा आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा शब्द प्रयोग किया है। यहाँ पर जो है आप हंस और ये भी देख सकते हैं। सो अभी ये शिल्प हम राइट व्यू से देख रहे हैं।
तो कंप्लीट आपको यहाँ पर क्लियर रूप से दिखाई देता है दिस एंड पोर्शन। तो ऊपर से लेकर के नीचे तक का पूरा पोर्शन आप देख सकते हैं। और गंगा जहाँ आ रही है तो इसके लिए जैसे ये टैंक यहाँ पर बनाया गया है। तो ये सारे वर्णन, ये सारे पॉइंट्स आप नोट करें। और लेफ्ट से लेकर के राइट तक का ये पूरा पोर्शन जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं। और जो भी आपको दिखता है वो लिखना है। ओके, देन ये राइट मोस्ट कॉर्नर है सबसे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बंदर जो है वो सर में जो हमारे यहाँ पर ऊ बोलते हैं उसको, तो वो ढूंढ रहे हैं। और एक सामने यहाँ पर जो है छोटा बंदर उसके गोद में बैठा हुआ है। और ऊपर एक हिरण हमें दिखाई देता है और नीचे लॉयंस। मगर इस लॉयंस का खड़े रहने का पोज देखिए, कितना बढ़िया पोज यहाँ पर दिखाया गया है। अब ये भी कुछ और हमें यहाँ पर ऐसे पत्थर ये दिखते हैं, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सोचना है और फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर हमें जो दिखता है ये क्या है। और ये शिल्प जो दिखाए हैं, सो इसके डिटेलिंग आपको जो है वो राइट अप करना है। ये सभी लास्ट तक हम देखें। अभी मैं यहाँ पर आपको जो है ये पूरा शिल्प और इसमें जो अलग अलग देवताएं आती है, और इसको छोड़ करके महाबलीपुरम के जो दूसरे भी शिल्प है वहां पर भी जो देवताओं के जो शिल्प आते हैं, तो उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो द 9th century sketches of clockwise this Hindu deities in a mandala, a lion statue, the entrance of a cave temple and a rock relief. So यहाँ पर आप जो है नीचे ये देख सकते हैं, ये अभी जो लायन खड़ा था सिर्फ उसका लेंथ एंड विड्थ और इसका ये दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया है। सी द ब्यूटी ऑफ दिस स्कल्पचर हियर इन दिस स्केच। देन उसी से थोड़ा दूरी पर जो है ये अभी पूरा पूरा यहाँ पर पूरा राइट मोस्ट कॉर्नर जो है वहां से देखते हैं लास्ट तक। तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर कृष्ण मंडप है। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ गंगा अवतरण शिल्प देख के जो है लोग वापस चले जाते हैं, मगर उसके बाद भी जो है कृष्ण मंडप भी हमको देखना है। सो कृष्ण मंडप इज आल्सो केव गैलरी इज कट ऑन द side of a boulder and shows a remarkable scene from Krishna's life of him lifting Mount Govardhan. गोवर्धन की कहानी भी शायद आपको पता होगी। द कृष्ण मंडपा हैज अ लेंथ ऑफ 29 feet एंड हाइट ऑफ अबाउट 12 feet। तो ये भी कितना बड़ा है उसका साइज देख करके हम समझ सकते हैं। द मोनोलिथिक पिलर्स इन द फ्रंट वेर एडेड लैटर टू सपोर्ट द रूफ ऑफ द केव। ओके, सो इट मीन्स दैट इट वाज आल्सो सेम एज द गंगावतरण शिल्पा। So in this Krishna mandap devotionally carved relief pays tribute to Krishna lifting Mount Govardhan. The shallow cave-like slot cut in the mountain is infused with warm light, bringing to life the villagers of Gokul huddled under the mountain. According to the legend, हमको पता है कि जब उस समय यज्ञ किया जाता था तो यज्ञ में जो आहुति जो दी जाती थी, समिधा जिसको कहते हैं, तो उसका एक हिस्सा इंद्र को दिया जाता था। तो कृष्ण जी ने उसके बारे में पूछा लोगों को कि आप ये उसको क्यों दे रहे, तो उन्होंने कहा कि ये देवता है। तो देवता किसको कहना है? तो जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारे लिए हमारी आरोग्य या हमारा जो अन्न है वो हमें प्रोवाइड करता है। तो ऐसे कुछ बातें जो गोकुल वासियों ने कृष्ण को बताई, तो कृष्ण ने कहा कि फिर इंद्र को देने के बजाय तो गोवर्धन पर्वत को देना चाहिए, गोवर्धन को देना चाहिए। इसका कारण हमारी सारी गायें जो है उसके ऊपर चरती है और सारे फल वगैरह जो भी है हम वहां से प्राप्त करते हैं, तो हमें वो उसे देना चाहिए। तब ये गुस्सा इंद्र को आया और इंद्र ने जो है शुरुआत यानी बमंडर हवा और तूफान और उसके बाद जो है घनी वर्षा से अपना गुस्सा प्रकट किया था। और सारे गोकुल वासियों को बचाने के लिए कृष्ण ने जो है गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तो ये स्टोरी है उसके पीछे। तो यहाँ पर आप ये लाइफ साइज पैनल जो है उसमें ये सब कुछ देख सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि जो भी स्टोरीज है वो उसमें आपको पता चलेगी। अब हम एक के बाद एक उसके बारे में देखेंगे। दिस इज द कंप्लीट 29 feet वाइड दिस बास स्कल्पचर। और ये जैसे कहा था कि ये बाद में पिलर्स और ये ऊपर का जो पैनल है ये बाद में बनाया है, रूफ जो है। अभी यहाँ पर जस्ट अ मिनट, नाउ आई विल ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट टू स्टूडेंट्स
प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड ट्राई टू से आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने जानबूझकर वो सेकंड स्लाइड इसीलिए डिटेल रूप में नहीं बताया, क्योंकि आपको ये देख करके बताना है कि आपको क्या दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, देसाई कॉलेज का कोई स्टूडेंट बता सकता है? एनी स्टूडेंट ऑफ देसाई कॉलेज कोई है? मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट करके बताइए कोई, मेरी आवाज आ रही है? हो सर। यस सर, आ रही है आपकी आवाज जी, ओके। तो कोई देसाई कॉलेज के कोई स्टूडेंट बताइए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो दिख रहा है वो बताइए। सर माझं नाव केशव लिंगे, मी HV देसाईचा स्टुडंट आहे। ओके सर इथं देवी आणि देवता दिसतात, प्राणी पण आहेत खाली, ओके ओके आणि वरती सर चित्रामध्ये प्राणी असे लटकलेले सारखे दिसतात आहे। ओके ओके, ठीक है। और कोई ये और कोई गोकुल बता बाग लग रहे हैं सारे, और गाय दिख रही हैं बहुत सारी, जी, तो गांव सीन ही लग रहा है ये। ओके। और यहाँ पर बीच में जो खड़े हैं वो है कृष्ण, जिन्होंने या। हाथों से अपने हाथ से जो है गोवर्धन पर्वत उठा लिया है, और गोपियां और ये सारी जो है यहाँ पर बाजू में खड़ी है। इस तरफ भी कुछ दिखाई दे रहा है, गायें वगैरह दिखाई दे रही है। यहाँ पर बलराम जी खड़े हैं, उनका हम और इसमें देखेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ये देख के कोई बता सकता है इसमें कुछ और अलग दिखाई दे रहा है? एनीवन, कोई भी बताइए, इसमें कुछ और दिखाई दे रहा है? सर तिकडे सर, कोई एक समज- महिला आहे आणि एक- तिच्या डोक्यावर हंडी ठेवली आहे आणि प्रत्येकाने जे जे दागिने घातलेत ना त्याचं सूक्ष्म रेखाटन केलंय त्याच्यामध्ये। Oh, nice. इन्होंने बताया कि एक गोपी ने जो है अपने सर के ऊपर मटके रखे हैं, एक के ऊपर एक, और एक हाथ उसका कमर पर रखा हुआ है, और उनके गले के जो ऑर्नामेंट्स है, ये ऑर्नामेंट्स यहाँ पर दिखाई स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो नाइस, थैंक यू। और गोपियों के साथ में उनके बालक भी है, ये भी हमको यहाँ नहीं भूलना है। ओके, तो अभी इसको देख करके कोई बताएं क्या दिखाई देता है? कोई बताएगा? इसमें तो गाय बछड़ा है सर, और एक कोई है जो कि मतलब कि दूध दूह रही है, माथे पे अपने कुछ लिए हुए हैं लोग, यहाँ कोई पर बंसी बजा रहा है। दूध निकाल रहा है। हाँ सर, यहाँ पे बछड़े को जैसो जो हाँ। मतलब कि गाय है वो प्यार कर रही है, जी, और इसके ऊपर में लोग जो है सो बंसी बजा रहे हैं, शायद अब वो पता नहीं कौन है। बराबर है जी जी। हाँ, और ये गाय जो बड़ा वाला गाय है सर, इसके ऊपर मतलब कि एक महिला है जो ऐसा लग रहा है कि वो अपने बच्चे से प्यार कर रही है, मतलब बिल्कुल। अफेक्शन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ओके, बैठा है, सही बात है। और यहाँ एक और औरत है, मतलब लेडीज है, जो कि अपने हाथ में कुछ लिए हुए है। जी, हाँ, यही औरत अपने हाथ में कुछ लिए इसने हुए सर है। पे कुछ उठाया है और इसके हाथ में कुछ है। कोई बताएगा? और हेलो। हेलो ये सर, मैं इंडिजिनस ब्रीड है काऊ की, मतलब देसी गाय है, क्योंकि उसके हम्प से हमें पता चल रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कितना कितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देसी गाय है, इसका ये वसिंड बोलते हैं उसको। ये देख करके पता चल सकता है कि ये हमारी देसी गाय है। ओके, और इसमें सूर्य नाड़ी होती है। सूर्य नारायण, बहुत अच्छा, थैंक यू। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और सभी उनको मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं, चाहे वो गायें हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो यहाँ आसपास। थोड़ा ये समझना होगा हमको कि कृष्ण ही अगर बांसुरी बजा रहे हैं तो गोवर्धन भी उठाए हैं, तो ये भी समझना है। ओके, और कुछ एनी मोर ऑब्जर्वेशन? सर ये भी देखने को मिल रहा है क्योंकि सर जैसी कथा है कि कई दिनों तक भगवान ने गोवर्धन उठा के रखा, तो लोग दैनिक कार्य कर रहे हैं। कोई दूध दूह रहा है, और एक लेडी है जो मुझे सोई हुई नजर आ रही है, एक बहुत स्त्री अच्छा। है जिसके ऊपर सामान रखा हुआ है, तो मतलब दैनिक कार्य भी हो रहे हैं सर। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई। देखिए, ये सर के ऊपर जो उठाया है ना, ये चारा है। उसने अपने गाय और भैंसों के लिए जो है चारा उसने लाया है, और इसके हाथ में जो दिखाई दे रहा है, तो ये ठीक से देखिएगा कि ये दूध निकालने का समय होता है अर्घ का, और इसने हाथ में जो है ना कंदिल होता है ना, कंदिल लैंप,
वो लेके आई हुई है और यहाँ खड़ी है और ये दूध निकाल रहा है। और यहाँ देखिए ये पुरुष जो खड़ा है उसके मूछें वगैरह सब दिख रही है। इसने अपना एक हाथ जैसे मानो यहाँ रिलैक्स पोजीशन में वो खड़ा है। ये ऐसे अलग अलग दृश्य हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर अभी जो गाय की बात कर रहे थे, देसी गाय की जो बात कर रहे थे और बछड़ों की बात कर रहे थे, कितनी सुंदर रूप से उन्होंने इसको दिखाया है कि क्या है हमको समझने के लिए। और यहाँ ऊपर जो है बच्चा जो माँ के साथ चिपक कर बैठा है वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और गायों के सींग अलग अलग रूप से आप अगर देखें। सर, हाँ जी बोलिए सर यह जो है सो गाय नहीं है, बुल नजर आ रहा है सर। बुल नजर आ रहा है यहाँ पे। हाँ। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पीछे गाय है, ये या क्या है, इसको भी थोड़ा ठीक से देखिए तब समझ में आएगा। सर ये तो गाय है, बट इस हाँ ये जो जहाँ पर दुहा जा रहा है गाय है, बट यह जो से बुल था, यह जो सामने बुल है। अभी देखिए और बोलिए। हाँ सर ये तो गाय है। पक्का? हाँ एकदम 100%। लॉक किया जाए? लॉक किया जाए सर। ठीक है। तो जो भी है, जो देख रहे हैं ना, तो उसको लिखिए आपको जो लगता है। फिर उसके बाद मैं हमेशा ये कहता हूँ, फिर उसके बाद या तो जाने से पहले स्टोरी को पूरा पढ़िए, या फिर यहाँ से आने के बाद, या फिर एक ब्राउशर या जो भी लिफलेट मिलता है या जो आर्टिकल मिलता है उसको पढ़िए, ताकि हमने जो अपनी आंखों से देखा और हमें बाद में जो पता चला वो भी जब दोनों आपका टैकल होता है तब उसको भूल नहीं पाएंगे। ओके, यहाँ पर भी अभी आप ये दृश्य स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जो मैं कह रहा था, यहाँ आप ठीक से देख सकते हैं कि उसने अपना कंधा जो है इसके रिलैक्स पोजीशन के इसके लिए रखा है। और यहाँ पर जो है बलराम जी खड़े हैं, अपना एक हाथ कमर पर रखे, और यहाँ पर फिर एक महिला जो है वो बच्चा जो है उसके गोद में यहाँ ऐसे बैठा हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं ये बांसुरी वादन हो रहा है। अभी अगर कृष्ण इस तरफ में उन्होंने ही इसको गोवर्धन को पकड़ा है, तो यहाँ पर फिर कौन बांसुरी बजा रहा है? तो हाउ द मिथ स्टोरीज एंड जैसे हम कहते हैं ना कि वर्णन, पुराणों में प्राप्त हुआ वर्णन और शिल्पों में जो वर्णन है, तो उसको हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ कंबाइन करके देख सकते हैं। कैन एनीवन से अबाउट दिस? स्टूडेंट को पहले ये करें, जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, कॉलेज स्टूडेंट कोई भी, एनी कॉलेज स्टूडेंट, कोई बता सकते हैं इसके बारे में कि ये क्या दिखाई दे रहा है? जो दिख रहा है उतना ही बताइए। एनीवन? सर ये हो सकता है कि नंद बाबा को उन्होंने थामा हुआ है। अच्छा, ऐसा लगता है। देखिए ये आपको जो दिखता है ना वो बोलिए, क्या दिखता है वो बोलिए। तो नंद बाबा है या नहीं है हम देखेंगे, मगर क्या दिखता है? जी सर, बलराम जी के पास जो पुरुष आकृति है उसके पास में हमें कुल्हाड़ी नजर आ रही है। बढ़िया, बिल्कुल। ये कौन हो सकता है? ये कौन हो सकता है? ये वुडकटर है ना? वुडकटर लकड़ी तोड़ने वाला हो सकता है, चरवाहा हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ पर खड़ा है बराबर, और इसके बाजू का कुछ और दिखाई देता है। सर ते वुडकटरच्या बाजूला लेडीज आणि त्यांच्या बाजूला जी एक मोठी आकृती दाखवली, त्यांचा हात वरती उचलल्यासारखा दिसतो। हो बरोबर। ये वुडकटर की पत्नी है, क्योंकि देखिए जिस तरह से उसने पकड़ा है, ये देख करके समझ में आता है कि ये उसकी पत्नी है। ये वर्णन किया है। हम अगर वो नहीं कह सकते तो हम सिर्फ इतना लिखें, एक वुडकटर या एक चरवाहा हमें दिखाई, एक व्यक्ति हमें दिखाई देती है जिसके कांधे पर बलराम जी ने अपना हाथ रखा हुआ है, और उसके बाजू में कुल्हाड़ी दिखाई देती है, और उसके बाजू में जो स्त्री खड़ी है जिसके गले का भी नेकलेस हमें दिखाई देता है, उसका हेयर स्टाइल बहुत सुंदर है, और वो यहाँ पर जो है उसका हाथ यहाँ पकड़े हुए खड़ी दिखाई देती है। उसके बाजू में जो है कृष्ण भगवान खड़े हैं, उनका किरीट भी यहाँ दिखाई देता है, और उन्होंने अपना हाथ जो है वो गोवर्धन को पकड़ा है। ये जो दृश्य अभी हमने देखा, इसका ये कंटिन्यूएशन थोड़ा सा जो है वो सेकंड वॉल पर भी यहाँ पर हमें दिखाई देता है, और कई सारे जंगली प्राणी भी जो है वो यहाँ पर आकर खड़े हैं। इसका मतलब है कि जंगल में जो है
ये गोकुल जब गोवर्धन पर्वत जब उठाए हैं तो सिर्फ गोकुलवासी ही नहीं बल्कि जंगल के प्राणी भी जो है, जंगली प्राणी भी जो है, वो भी उसे उसके आश्रय के लिए यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं। ये यहाँ दिखाई देता है। और यहाँ पर दो आकृतियां हमें दिखाई देती है, एक पुरुष आकृति, एक स्त्री आकृति, जो अपने कमर पर हाथ रखे खड़ी हुई है। सो जो हमें दिखाई देता है उसके बारे में लिखिए। फिर उसके बाद जो आर्टिकल्स या जो पेपर्स हम आपको भेजते हैं उसको पढ़िए और उसको और ज्यादा सर डिटेल में का प्रयास करें। जी हाँ सर, जो पीछे वाली तस्वीर उसको एक बार थोड़ा सा बैक कीजिए। हाँ, यह जो तस्वीर है सर, इसमें मतलब कि ऐसा लग रहा है कि यह दोनों पुरुष और स्त्री नृत्य करने की मुद्रा में है। नहीं, यहाँ नृत्य करने का इतना समय नहीं था क्योंकि ये ऐसा ये ओकेजन नहीं है उस तरह का, इसको भी समझे। अभी यहाँ पर उसके बिल्कुल बाजू में ये जो पंच पांडव टेम्पल जो है उसके शिल्प भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मगर एक इंटरेस्टिंग बात आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो मंदिर जब बनाए जाते हैं तो उस समय में हम कहते हैं ना कि लॉकिंग सिस्टम्स होती है। सो स्टोन एक दूसरे के अंदर लॉकिंग करके बनाए जाते हैं। सो कुछ मार्क्स हमें इस तरह के यहाँ पर दिखाई देते हैं। दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। अभी इसी के थोड़े दूरी पर जो है एक वराह केव टेम्पल है, यानी जो अभी हमने दो ये प्रमुख देखे। पहला तो हमने गंगा अवतरण शिल्प देखा, उसके बाद हमने कृष्ण मंडप देखा। अब आप यहाँ पर जो है वराह केव टेम्पल देखते हैं। सो दिस इज अ रॉक कट केव टेम्पल located at this Mamallapuram and on the Coromandel coast of the Bay of Bengal, and it is part of the hilltop village which is 4 kilometers to the north to the main Mahabalipuram sites of this Pancharathas and the shore temple. Actually it's not Pancharathas, it's 8 Rathas, okay, but it's famous as the Pancharatha temple, okay. So Ratha temples. So यहाँ पर आप ये वराह केव टेम्पल जो है उसका फ्रंट पोर्शन देखते हैं। तो see these are the यास और व्यास, व्हाट्स यू प्रोनाउंस इट। और कई अलग अलग शिल्प हमें यहाँ दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ द्वारपाल देवताएं हमें दिखाई देती है और कुछ अंदर और इंटरेस्टिंग शिल्प हमें दिखाई देते हैं। बट सी हियर, फर्स्ट हियर देयर इज एन ओनली सिंपल steps are there with a little water pond like that. Then after the steps there is a open pavilion, ये मंडप पोर्शन दिखाई देता है। And directly after 2 steps there is a garbhagriha, and left side this 1 2 and 3 4, these 4 panels are there. So now you can see here again, this is an interesting thing. ये हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना इस रीजन में इस तरह के टेम्पल्स का यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं देता है। बट हियर यू कैन सी, एंड दिस इज द octagonal shaft pillars are right there. So now we can see one by one this shilpa. So this is carved on the northern end panel of the mandapa is the group of Varaha uplifting Prithvi Bhudevi from Patala. In this group, the main figure is Vishnu as Varaha on the man-boar incarnation. Vishnu has 4 arms, 2 of which hold the chakra and the shankha, and the other 2 arms are thrown around the Bhudevi. So seated on the god's uplifted and bent right knee. तो यहाँ पर ये why it's called as the Varaha cave temple. So this is the first one शिल्पा here. और यहाँ पर उनका पैर जो है, विष्णु का पैर जो है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये शेष फणेवर पृथ्वी डोले, तो शेष का जो फना है उसके ऊपर उन्होंने अपना पैर रखा हुआ है। Then this is the second panel, and this is the Gaja Lakshmi panel. Lakshmi is seated on a full-blown lotus. Then her legs resting on a spread-out lotus leaf. The other lotus leaves shown vertically with their stalks suggest the location to be a lotus tank. यहाँ पर आप नीचे वाला ये पोर्शन अगर देखेंगे, ये पूरी तरह से खिला हुआ कमल है जिसके अंदर लक्ष्मी बैठी हुई है, और नीचे और ये पंखुड़ियां जैसे अभी खिल रही है, ऐसा दृश्य यहाँ पर दिखाया है। और फिर उनके जो डिसेंट्स जो है वो यहाँ दिखाए हैं, और ऊपर से गज उसको अभिषेक के इसमें खड़े हुए दिखाई देते हैं। देन हियर दिस साइड पोर्शन आप यहाँ पर मुख्य द्वारपाल देवताओं के साथ साथ यहाँ बाजू में और ये दिखाई देते हैं। सो देयर आर दी 4 such figures are right there,
and all are the life size figures. Then this is the Durga panel. Right side में पहला panel जो है वो दुर्गा panel है. Humble request to all of you that please mute yourself. जो भी है, जो भी महान, जो भी विद्वान है, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया म्यूट रखिए. दुर्गा पैनल आप यहाँ पर देख सकते हैं. इन दिस पैनल दुर्गा स्टैंड्स 4 आर्म. मैं जो हमारे को होस्ट जो है वो भी उनको म्यूट कर सकते हैं. सो इन सच सिचुएशन उनको आप म्यूट करें. यहाँ पर मैंने अभी सबको म्यूट कर दिया है. ओके, जब सवाल पूछना होगा तब मैं ऑन करूंगा फिर से. सो इन दिस दुर्गा स्टैंड्स 4 आर्म्ड ऑन अ पद्म पीठा. आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं. एंड द लोअर राइट हैंड इज इन अभय मुद्रा एंड लेफ्ट इज इन कटी, while the upper arms hold the chakra and a shankha. Kneeling on her right is a devotee offering his own head, held up by the tuft with his left hand. आप यहाँ पर देखते हैं कि उसने हाथ में हथियार पकड़ा हुआ है और अपना सर काट करके अभी उसके चरणों पर अर्पण करने जा रहा है. इस पोजीशन में वो यहाँ पर बैठा है. On the left is another devotee seated on his knees in adoration, and on the either side of Durga are 4 dwarf ganas with pot lips. यहाँ पर आप ये देख सकते हैं. This here are 2 and here are 2. So on top is the head of the this roaring lion, and emerging from the background, while on the left emerge the head of an antelope. Such an association of lion and antelope with the Durga is also found in an almost identical panel near the shore temple. So where a little form of Durga is enshrined in a niche cut into the chest of a sweating lion, while below, curled on the rocks, lies on antelope is in a sleeping position. So यहाँ ये सुंदर शिल्प जो है हम देखें. और लास्ट में त्रिविक्रमा पैनल. So even though this cave temple is called Varaha Mandap, it also features a breathtaking relief of the Vishnu in the form of Trivikrama, the giant form of Vishnu. Vishnu took the form of Trivikrama in order to subdue the Asura king Mahabali. So महाबली का वध करने के लिए वो यहाँ खड़े हैं और उनके हाथों में अलग अलग हथियार. और हम ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है ब्रह्मा और इस तरफ में शिव है, और उसके बाद उसके नीचे जो है सूर्य और चंद्र, ये देवताएं हम यहाँ पर देख सकते हैं. त्रिविक्रम की स्टोरी अगर आप समझेंगे तब आपको ये सारे शिल्प जो है उसका अध्ययन हो सकेगा. या ये कैसे फाइंड आउट करना है ये शिल्प किसका है, तो उसके लिए जो कोश है शिल्प कोश, उसके बारे में अध्ययन करें. जैसे हमारे यहाँ पर मूर्ति शास्त्र नीपू जोशी जी की अच्छी किताब है. मैं कुछ शिल्पों के बारे में स्पेशली कुछ किताबें मैं आपके साथ शेयर करूंगा. कृपया उसे पढ़िए ताकि कहीं पर भी विजिट करेंगे तो कौन सा शिल्प किसका है, किस देवता का है, हाउ वी कैन फाइंड आउट इट. सो उसके लिए आप जो है वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. ओके, नाउ दिस इज अनदर महिषासुर मर्दिनी केव टेम्पल इज देयर. अभी यहाँ पर भी आप महिषासुर मर्दिनी का ये शिल्प देखते हैं. सामने ही राक्षस खड़ा है और यहाँ पर जो है सिंह पर बैठी हुई ये महिषासुर मर्दिनी दुर्गा जो है उसको हम देख रहे हैं. और यहाँ नीचे सारे योद्धागण हम देखते हैं. सो ये सारे दृश्य जब भी कोई शिल्प आप देखेंगे तो उसके बारे में जैसे कहा कि जो दिख रहा है उसको क्लियरली नोट करें, उसकी स्टोरीज या उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ें. सो अगेन हियर द विष्णु इन दिस रिलैक्स पोज में, वो बिल्कुल आराम से, क्योंकि फेस को देखिए सो समझ में आएगा कि बिल्कुल शांत मुद्रा में ये यहाँ पर सो रहे हैं. लाइंग ऑन अ भुजंगा, सो भुजंग शयनम in Mahishasur Mardini cave temple here, and in front of this you can see this is an youth सुदर्शन जो है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है. तो ये सुंदर दृश्य आप इसे देख सकते हैं. This is again this shilpas are right there. So the craftsman further took a step experimenting to create monolithic temples, or these may be treated as prototype of creating monolithic marvel. The 8 rock-cut rathas, the Dharmaraja, Arjuna, Bhima, Sahadeva, Draupadi, Ganesha, and then Valiyanakutti, this Pidari,
however may not be created in same order stands side by side. So there are the 8 rathas. The rathas are beautifully carved and the sculptures on them represent the Hindu mythology. So the reference may be given of carved images of bull, lion and elephant, the vehicle of Shiva, Durga and Indra respectively. So the influence of Amaravati art can easily be noticed here in terms of the movements. But again, just I want to say that you can use the word as the influence, or you can say that identicals or the similarities are right there. Okay, so ये फिर जितना गहराई से अध्ययन करेंगे उसके बाद जो भी है आप अपना स्टेटमेंट करें, but without that you can't give such any statements. Okay, so movements and expressiveness of poses and gestures, the tabular, this excursion of the thinness of the arms and legs, heart-shaped faces and high cheekbones represents a new dimension in the cluster of art is a prescriptor of forthcoming developments in this monolithic architecture. So the Dharmaraj Ratha is the tallest among all. अभी यहाँ पर जो है अलग अलग रथ जो है उसके बारे में जानकारी दी है, मगर हमें आर्किटेक्चरल जानकारी यहाँ पर नहीं देखनी है, सिर्फ जो शिल्प है उनके बारे में देखना है. तो आप ये अलग अलग शिल्प यहाँ पर देख सकते हैं और जो भी आपको दिखाई देता है उसके बारे में लिखे. ये हाथी आपको दिखाई देता है, ऊपर कोई देवता बैठी है तो ऐरावत और इंद्र है, ऐसी जो समझ में आता है उसके बारे में लिखें. और जब आर्किटेक्चर, मैं क्षमा चाहता हूँ, इसके पहले वाला जो हमारा कोर्स हुआ था उसमें हमने पल्लवा आर्किटेक्चर बारे में एक सेशन हमारा हुआ था और हमने आर्किटेक्चर के बारे में डिटेल्ड रूप से जानकारी दी थी. आई विल शेयर दैट रिकॉर्डिंग आल्सो जस्ट आफ्टर एंड दिस सेशन. तो कृपया आप पहले उसको देखिए, फिर उसके बाद ये शिल्प जो है उसके बारे में आप अध्ययन करें. यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ये सारे लॉयंस को देखेंगे तो ये सिंहथरा, तो जैसे एलोरा में हम गजथरा देखते हैं तो जैसे हाथी के पेट पर मंदिर खड़ा है. अब यहाँ पर जो है लॉयन आप देखते हैं तो ये आपको समझना है. अगेन दिस होल्स, ये क्या स्ट्रक्चर्स है, उससे साथ साथ ये ऊपर का जो भी पार्ट है शुकनासी और जो भी अपर जो टावर पोर्शन जो है उसके बारे में भी आप उसमें जानकारी ले सकते हैं. बट हियर वी नीड टू स्टडी दिस शिल्पा. So the Pallava Grantha script and the sculptures show unmistakable affinity with the South Indian Pallava culture. So Mahabalipuram, the port of these Pallavas, must have played a great part in the preparation of the Pallava culture beyond India. This panel from the northeastern corner of the Dharmaraj Ratha shows a statue of Narasimhavarman first. So most of the monuments of Mahabalipuram belong to his region. तो यहाँ पर जैसे हमने कल भी जानकारी ली थी, तो हमें देखना है जिन्होंने निर्माण किया है उनके बारे में कहीं जानकारी मिलती है क्या, और ऊपर भी जो है उसके बारे में इंस्क्रिप्शंस वगैरह जो है वो हम देख सकते हैं. तो आर्किटेक्चरल स्टडी अगर आप करना चाहते हैं तो आर्किटेक्चर के साथ साथ आप शिल्प अध्ययन करें, ताकि ये 4 अलग अलग जो स्टेजेस जिसको हम कहेंगे, so Mahendra style, Mamalla style, Rajasimha and Nandivarman style and Aparajita style, तो ये स्टाइल्स के साथ साथ आप शिल्प अध्ययन भी कर सकते हैं. सो महेंद्र स्टाइल जो फर्स्ट इसमें हम देखते हैं, तो यहाँ पर सिंपल रॉकट आर्किटेक्चर इस कुछ इंस्क्रिप्शंस के साथ देखते हैं, और अंदर जो भी शिल्प आप देख रहे हैं जैसा शिवलिंगा, ये तो बाद के पीरियड का है ऐसा प्रतीत होता है, मगर बाकी सारा पोर्शन देखने के बाद पता चलता है कि बहुत ही सिंपल ये शिल्प यहाँ पर है. और पर्टिकुलरली यहाँ जो है देवताएं, यानी जैसे हमारे यहाँ पर गंगा और यमुना के शिल्प कहते हैं, सो फीमेल द्वारपालास आर राइट हियर. ओके, सो दीज आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम कुछ उस काल का महत्व क्या है, उसमें कैसे ये अलग कौन से शिल्प हमें दिखाई देते हैं वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं. देन हम दिस महेंद्रवाड़ी विष्णु टेम्पल ऑफ दिस महेंद्रवर्मन जब देखते हैं तो उस समय भी आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल ये रॉकेट आर्किटेक्चर है. मैंने जो शुरुआत में कहा था टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल अगर आपको अध्ययन करना है फर्स्ट फेज और अर्ली फेज, तो उस समय हमें ये अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखते हैं इट्स लुक लाइक एज अ सांची टेम्पल नंबर 40, वेरी स्मॉल दिस जगती, बट इट्स नॉट लाइक दैट प्लेटफॉर्म, but this is a rocket, and then here only the 2 pillars are there and the ardhamandapas are right there, and then this is the shrine Garbhagriha.
So but without any panels or the sculptures are right there. So ये इंटरेस्टिंग थिंग्स हमको दिखाई देती हैं, और आगे नेक्स्ट फेज में हम फिर उसको देखते हैं कि थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है. देन मामल्ला स्टाइल में और कुछ थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है. इन दिस फॉर्म द द्वारपालास आर मच the same as in the earlier caves. The figures, though still heavy, have definitely the slimmer counter. On the whole, the general features of the earlier period continue. So here we will stop now. I will share the articles and the books. Please study it. And you can see over here again this entire Ganga Avatarana Shilpa. So this is an interesting thing. This Nandita Krishna and artist Venkatesha wrote this. So here you can enjoy this in real sense, क्योंकि यहाँ पर उसको कलरफुल बना करके क्या स्टोरी हो सकती है उसको बहुत अच्छे से दिखाने का प्रयास उन्होंने किया है. Then this is an excellent books by Srinivas J. Prabhakar and here Mahabalipuram. Then this Nagaswami's book is there. This monumental legacy of Mahabalipuram. And then the architectural legacy of Dharmaraj Ratha. Then here is the Mamallapuram, Mahabalipuram for beginners, जो भी शुरुआत में अध्ययन कर रहे हैं, ट्रैवल गाइड ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनके लिए. So now if you want to read more, then here are the references. So if you want to read, then please take the screenshot, and if any questions, then most welcome. Just a minute. You can write in chat box also. Just a minute. I will see in chat box if there are any questions. Which language is used for inscriptions at Mahabalipuram? As just now mentioned, a Grantha script is there. Language, Sanskrit is there. Latter Pallava or latter Pandya, some few words we can say Tamil, Telugu, like that. इसके बारे में मैंने ज्यादा डिटेल रूप में अध्ययन नहीं किया है, इंस्क्रिप्शंस पर्टिकुलरली, और वो भी पल्लवा के बारे में जो है, क्योंकि जैसे अभी कहा कि ग्रंथा स्क्रिप्ट जो है वो हम देख सकते हैं, और कुछ इंस्क्रिप्शंस जैसे अभी आर्किटेक्चर के इसमें केव के इसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो अर्ली फेज में ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी दिखाई देती है, और लैंग्वेज जो है वो संस्कृत वहां दिखाई देती है. जस्ट अ मिनट. ओके, स्वाति अग्रवाल जी मेंशन्ड हियर, प्लीज शेयर द पीडीएफ. ओके, आई विल शेयर पीडीएफ फाइल्स. त्रिविक्रम देवता कौन से है? ये विष्णु का अवतार है स्वाति जी. सो त्रिविक्रमा. सो मैं एक किताब है जो आपके साथ शेयर करूंगा, वो जरूर अध्ययन कीजिएगा, ताकि सारे देवताओं के बारे में कौन से देवता और उसका कैसे ये उनके क्या यानी कैसे हम समझना है कि कौन सी देवता यानी शिल्प कौन सा किस देवता का है, उसके आयुध क्या है, अलंकार क्या है, उसका चिन्ह क्या है, उसका जो आसन है उसका क्या है, या उसके लांछन लक्षण क्या है, वो सभी आप उसमें देख सकेंगे. राकेश जी, यस प्लीज जस्ट अ मिनट. कृष्णा पैनल. वो गाय का दूध निकल रहे हैं ना, वो इमेज. जी बोलिए उसके बारे में क्या. हाँ, गाय का दूध निकल रहा है ना, वो इमेज जरा दिखाई. उसका जो हेयर स्टाइल है ना वो अलग है. वो कोई बोलते हैं वो बुद्ध है वगैरह, कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी है, लेकिन वो जो अलग हेयर स्टाइल है वो क्यों है वैसी हेयर स्टाइल, ऐसे पूछना. अभी आपको प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखा रहे. जस्ट अ मिनट. यस सर. अभी दिख रहा है? हाँ दिखा रहे. इसका जो हेयर स्टाइल है ना इसमें, हाँ अरे हाँ, इसका जो गाय दूध निकाल रहा है वो आदमी का. अभी आप मुझे बताइए कि ये जो हेयर स्टाइल है,
हाँ। ये हेयर स्टाइल जो है ये सिर्फ बुद्धा का हो सकता है ऐसा नहीं कह नहीं हो सकता, मेरा मतलब मेरा नहीं है, लेकिन उसका ऐसे कॉलम कॉन्ट्रोवर्सी क्योंकि होती है है। तब हमको ये ये भी मेरा समझना है। क्लैरिफिकेशन चाहिए। सी इट्स नॉट अ सिंगल स्कल्पचर, ये सिर्फ एक ही शिल्प नहीं है। जैसे नहीं, हाँ, हाँ, कई बार महावीर और बुद्ध की मूर्तियों के इसमें बहुत बार डिबेट होता है, हाँ। तो यहाँ तो जो है ये सिंगल नहीं है ना, इट्स एंटायर, बाकी आजू बाजू को भी जैसे देखिए। बराबर है। हाँ, तब हम इसकी स्टोरी को समझ सकते हैं। अगर जिसको भी अपना ओपिनियन देना है तो वो सारी स्टोरी फिर पूरी जो है उसके बारे में डिटेल बताएं, तब हम भी इसको समझ। ओके, थैंक यू। जी, और इस तरह का हेयर स्टाइल आपको कई जगह पर दिखाई देगा। एनी मोर क्वेश्चंस? किसी को कुछ और पूछना है? सर शुरुआत में आपने कहा था मोनोलिथिक टेम्पल, तो सर आपने फिर कहा मोनोलिथिक टेम्पल की एक ही पत्थर से बनाया गया, फिर आपने कहा सॉरी पाषाण, फिर आपने कहा सॉरी पाषाण, तो सर पाषाण और पत्थर, सर क्या डिफरेंस आप बताना चाहते हैं? पाषाण मैंने मुझे रॉक रॉक जो है ना, रॉक स्टोन जो पहाड़ जो है उसको जब आप तोड़ करके बनाओगे अलग है, मगर कहीं से उठा के लेके आके पत्थर जब आप बनाओगे वो बात अलग है। तो ये दो डिफरेंस आप समझ। अच्छा अच्छा ठीक है, मोनोलिथिक ऑफ द रॉक। ओके सर। मुझे एक प्रश्न पूछना था कि जी। ये जो मोनोलिथिक केव टेम्पल्स हैं, सो इसके अंदर मतलब ये एक हिल था या माउंटेन था, उसको हॉलो आउट करके पूरा बनाया गया है? आप एग्जैक्टली किसके बारे में पूछ रहे हैं? किस शिल्प के बारे में? गंगा अवतरण के बारे में या और किसी के बारे में? नहीं, जितने भी कोई केव टेम्पल्स जो होते हैं वो। केव टेम्पल्स जो है, हाँ यस, आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अच्छा जी, थैंक यू। उसको उसको कार्विंग करके ही बनाया जाता है। सर ये जो रथ और मंडप मंदिर हैं, इनके जो गर्भगृह हैं, इनमें कौन सी मूर्तियां स्थापित है, यानी कौन सी देवताओं को समर्पित है वो मंदिर? ये रथ टेम्पल्स जो है उसके बारे में? हाँ सर, रथ और जो भी मंडप ये मंदिर ये हैं, ये जैसे जो नकुल रथा, भीम रथा, द्रौपदी रथा, अर्जुन रथा, ऐसे नाम दिए हैं उसको। और नाम दिए हैं तो अल्टीमेटली वो उसी देवता को समर्पित है, मगर उसमें कई सारे शिल्प हम देखते हैं। उसके बारे में एक डिटेल्ड सेशन इसके पहले हमारा हुआ था, मैं उसके लिंक आपको शेयर करता हूँ, वो रिकॉर्डिंग पूरा आप देखिए। सर गर्भगृह में कोई मूर्ति स्थापित है तो वो क्या द्रौपदी और उनकी है? इसमें आपको गर्भगृह में दिखाई देगी। जैसे इंटरेस्टिंग थिंग है, द्रौपदी रथ को देखिए, उसमें आपको दिखाई देगी। सो लाइक दैट, बाकी इसमें ये नहीं दिखाई देता है। अच्छा, मंडप मंदिर जो इसमें फर्स्टली जो बनाए गए थे मंडप मंदिर, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा जो बनाए गए थे मंडप मंदिर, किस देवता को समर्पित है? जो भी द्वारपाल हम देख रहे थे, जिसमें नीचे पैनल भी था, आप बता रहे थे। इट्स अ शिवा टेम्पल। एक एक जो अभी आपने देखा, इट्स अ शिवा टेम्पल, क्योंकि लेटर ऑन एक इसमें आपने देखा कि शिवलिंग बिठाया भी गया है एक इसमें। एनी मोर क्वेश्चंस? और सर ये जो गंगा अवतरण का है, ये चट्टान वहीं पे थी और जी हाँ, उसी को कार्व किया गया। जी हाँ, क्योंकि इतना बड़ा तो विशाल जो है कहीं से ला करके नहीं ये हाँ कर हाँ सकते। हाँ हाँ। और आज भी अगर वहां गए, हमने तो सिर्फ फ्रंट पोर्शन देखा, एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ अ हिल, सिर्फ फ्रंट सर ये जो पोर्शन। जी महाबलीपुरम में भी वही जो ग्रेनाइट की पूरी चट्टान को तोड़ करके ये सारे रथ टेम्पल्स बनाए गए थे। जी, अच्छा पहाड़ी जो है उसको उसको रॉक जो है उसको तोड़कर ही ये सब बनाया गया है। यहाँ पर हम एलोरा में ऐसे बहुत आसानी से समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो है पहाड़ का हिस्सा आज भी उसी तरह से दिखाई देता है, मगर यहाँ पर वो नहीं दिखाई देता, इसलिए कंफ्यूज होते हैं। बट दे ऑल आर द रॉक कट टेम्पल्स। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अब इसमें अपवाद बताया गया है इतिहासकारों का कि अगर ये केव को खोद कर बनाए गए हैं, तो वो जो खोद कर बनाए गए जो अवशेष है, कुछ जो बचा हुआ वो वहां पर नहीं है। तो ये स्पष्ट नहीं है कि ये वाकई में खोद कर बनाया ये गया है क्या?
किस केव के बारे में आप कह रहे हैं? सर ये एलोरा ये ये मतलब कोई भी जो भी गुफा को काट के कृष्ण, जैसे कृष्ण प्रथम का है एलोरा के टेम्पल। अभी अभी आप मुझे ये बोलिए कि जब हम उसको कार्विंग किए, जो भी पत्थर वहां से निकाले, यस सर। तो हम आजू बाजू का जो लैंड देखते हैं, तो वो लैंड या ऊपर जो हिस्सा जो होता है, क्योंकि केव्स बनाने से पहले जब भूमि परीक्षक जब उसके सारा परीक्षण कर लेता है, तो उसके बाद जब घावार उसको काटता है, तो जब ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, यानी जहां पर भी दरारें हो, जहां से पानी आ सकता है, ऐसी दिक्कतें हो, पहले तो ये सारा जो पत्थर का जो चूरन होता है, जो भी कार्विंग करके निकाला जाता है, वो उस पर फैला दिया जाता है पूरी तरह से, ताकि वो उसके साथ बिल्कुल ठीक से पेस्टिंग हो सकता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, वो वहां से कहाँ ले जाकर के डाल दिए होंगे, उसके बारे में तो कोई रिटर्न हमारे पास एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है। मगर आजू बाजू का अगर पोर्शन देखा जाए, कहीं स्टोन्स और ये लैंड अगर देखा जाए, तो वहां भी हमको ऐसा कोई नहीं। बट रोड और ये जो बनाए जाते थे, आज भी जिस तरह से हम कई जगह पर रोड के लिए यूज करते हैं, तो हो सकता है कि ऐसे कामों में यूज किया गया हो। ओके सर। यस नेहा जी, कुछ पूछना है आपको? हो सर मला माझा प्रश्न असा आहे की अशी कुठे अशी टेम्पल्स आहेत का जिथे एकाच टेम्पल मध्ये जे विष्णूचे सगळे अवतार, किंवा आता तुम्ही जसे म्हणालात मगाशी की शंकराचे अवतार आहेत, तसे असे कुठे एकाच टेम्पल मध्ये सगळे असे अवतार आहेत, असं कुठे टेम्पल आहे? सगळ्याच देवांचे सगळेच अवतार एकत्रित बघायचे का एकाच देवतेचे सगळे अवतार बघायचे? एकाच देवताचे सगळे अवतार, म्हणजे आता विष्णूचे आणि विष्णूचे सगळे अवतार। पहले तो बात ये है कि अवतार कितने मानेंगे उसके ऊपर डिपेंड है। विष्णु के दशावतार अगर मानेंगे तो एलोरा के केव्स में भी आप देख सकते हैं। वहां तो हमारा जो कैलाश केव है उसमें ये सारे दशावतार उसमें दिखाए गए हैं। तो मगर जैसे कल हमने बात की थी कि शिवा के जो है वो 14 अवतारों के पेंटिंग्स वहां पर दिखाए गए हैं। मगर जब हम ये देखते हैं कि अवतार कितने हुए, तो संख्या तो बढ़ती ही जाती है, हनुमान की पूंछ के जैसा हो जाता है। कई बार 19 मिलते हैं, 20 मिलते हैं, कई बार और 108 तक चला जाता है, तो तब मुश्किल हो जाती है। तो ये पहले समझना है कि हमें अवतार कितने हैं, और उसके बाद फिर हम डिसाइड कर सकते हैं। और ये संख्या अगर बढ़ती जाएगी तो शायद ही कोई ऐसा रेयर एग्जांपल हमें दिखाई। ब्रह्माचे अवतार आहेत, ब्रह्मदेवाचे? इसके बारे में मुझे ज्यादा अध्ययन नहीं है, मुझे क्षमा करना। मैंने अभी तक तो नहीं पढ़ा कि ब्रह्मदेव के भी कोई अवतार है, ऐसा मैंने नहीं पढ़ा। निर्माता को कभी अवतार लेने पड़े थे ऐसा मुझे नहीं पता है। अगर किसी स्कॉलर को अगर पता है, यू कैन शेयर इट। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। So okay, if the questions are over here, then we'll stop and tomorrow we'll meet again. So thank you. Thanks a lot to all of you. Thank you, sir. Most welcome. Thank you, sir. Thank you so much. Yeah, most welcome.